Hello class 10th, again I am KN Mishra, your biology teacher. Welcome all of you in online classes. Class, at present we are studying a new topic, that is respiration. As I told you in my previous online class that we study respiration in two broad headings for our convenience. Respiration may be of two types. First one is alveolar respiration, second one is cellular respiration. As far as alveolar respiration is concerned, what is alveoli? Alveoli is the smallest part in our lungs. हमारे लंग में alveoli एक छोटा सा पार्ट है. So alveolar respiration means to take air in our lungs and to expel carboxygenated air out from the lungs. This process is simply known as alveolar respiration, that is inspiration and expiration. Clear? This is a mechanical process. In addition to alveolar type of respiration, there is also cellular respiration, which is of equal importance. What is cellular respiration? Cellular respiration is always going inside the cell. The site of cellular respiration is oxysomes of mitochondria. Of course, mitochondria are known as the powerhouse of the cell because mitochondria is made up of two membranes. Outer membrane is porous and inner membrane have projections, finger-like projections. These projections are known as cristae here in case of mitochondria, cristae, and upon the surface of the cristae matchstick-like structures are projected. These matchstick-like structures are known as oxysomes. These oxysomes are the site of production of energy in multicellular organisms. Clear? Now come to cellular respiration in detail. आपको cellular respiration ही पढ़ना है, डिटेल में थोड़ा जानते हैं. Cellular respiration is the breakdown of 6 carbon compound into 3 carbon compound. ऐसे भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक है. Breakdown of 6 carbon compound into 3 carbon compound is known as cellular respiration. Of course, 6 carbon compound is known as glucose, C6H12O6, and 3 carbon compound is pyruvate. यहाँ पे ध्यान से समझिएगा. कभी कभी पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी रिलीज होती है. ये कब होता है? ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है. यहाँ पे कहाँ ऑक्सीजन लग रहा है? ऑक्सीजन तो यहाँ लगा. 6 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड बनाने में ऑक्सीजन का यूज हुआ, लेकिन यहाँ पायरुवेट से इथेनॉल और CO2 बनाने में ऑक्सीजन का यूज नहीं है. देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज एनारोबिक प्रोसेस और एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, एंड दिस प्रोसेस इज हेल्ड इन ईस्ट in the process of fermentation. You have heard the name of fermentation, I think. So in yeast, during the process of fermentation, anaerobic respiration takes place, in which 3 carbon compound pyruvate breaks into ethanol, carbon dioxide and few energy releases here. ठीक है. 6 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड बनता है सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है. आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है. माइटोकॉन्ड्रिया में इस 3 कार्बन कंपाउंड से 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, H2O का मॉलिक्यूल और एनर्जी रिलीज होती है. ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, अभी जो हम नाम बताए हैं ऑक्सीसोम पर, ये प्रोसेस होता है, ठीक है. तो दिस प्रोसेस इज हेल्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होती है, इसलिए इस तरह के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, एंड दिस प्रोसेस हेल्ड इन human beings.
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? आपकी बुक में एक चीज़ और लिखी हुई है कि ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी, कभी कभी अचानक हम दौड़ पड़ते हैं, जैसे अचानक बंदर आ जाए सामने को, भागेंगे एकदम सिर पे पैर रख के। तो कभी कभी अचानक जब हम सडन एक्टिविटी कोई करते हैं तो मस्कुलर क्रैम्प हो जाता है हमको। मस्कुलर, ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट था यहाँ पे, 3 कार्बन कंपाउंड, और ये 3 कार्बन कंपाउंड नॉर्मली तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी में, लेकिन जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, क्योंकि हम बहुत तेज़ सांस लेते हैं जब दौड़ते हैं, तो ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो जाता है। जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो जाता है तो ये 3 कार्बन यानी कि पायरुवेट ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड this muscular cramp occur, and since oxygen is not fully involved in the process, so this is known as anaerobic mode of respiration. Once again, ये समझ में आया सबके? ठीक है, आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम ये ज़रूर बनाएंगे। ये है फिगर 6.8, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अलग अलग पाथवेज दिए हुए हैं। ये फिगर 6.8 ड्रॉ करेंगे। फिगर 6.8 ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, ये लैक ऑफ ये ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में हो रहा है, और ये कंप्लीट। तीनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं और ये सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है आपकी बुक में कि the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all the metabolic activities going inside any living organism। मतलब ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट यूज़ हो जाता है एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, और एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रख दिया जाता है, और ताकि जब नीड हो एनर्जी की तब उस एटीपी को फिर से ब्रेक किया जाए और एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, तो इस एनर्जी का ज़्यादा पोर्शन यूज़अप हो जाता है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। एंड एनर्जी इन आवर बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ओनली। ठीक है, ये रेस्पिरेशन के बारे में था। नाउ अबाउट रेस्पिरेशन वी विल स्टडी मोर इन लेटर ऑनलाइन क्लासेस, सिंस वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज रिटेन हियर इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन and in various plants respiration, various types of respiration is written here. We will study about respiration in detail in later online classes, next online classes. Students, stay home, be safe. Thank you, class 10.